JT Senior College for Women is extremely pleased to make this announcement that it is going to start 2-day national level net set exam guidance workshop. This is the 4th year of our continuity of this workshop. We feel honored. We feel honored to mention the Department of Chemistry is responsible for the organization of this workshop. At this point of time, let me recollect the contribution of those without whose permission and help this workshop wouldn't have been possible. First and foremost, all the faculty of chemistry department express their heartfelt and sincere gratitude to the honorable chairman of the JT campus, Alhaj Ansari Nihal Ahmad Sahab, who most efficiently and single-handedly managed the campus and the institute. Next to him, we are grateful to Honorable Principal of the college, Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan. He is MSc PhD PLIT from USA in chemistry. In addition to many honors in his credit, he is the writer of 14 books in which the design of research, status of human rights, green chemistry, basic physical chemistry, etc. are the most prominent books. Thirdly, we are thankful to Aquasi and all other departments. We are thankful of the college to make this workshop realize. With due respect, I would like to call upon the Honorable Principal, Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan, for inaugural speech. Good morning to all of you. Honorable Chief Guest of this workshop, staff members and students. I, Principal of this college, welcome to all of you on behalf of JT Trust, behalf of JT Arts Science Commerce College, behalf of staff members and behalf of students. It is a great pleasure and proud for us that we arrange such beneficial and beautiful workshop for the students who face the coming NET or SET examination. We want to show them right path. So for this purpose, we invite eminent expert to show them very right path. And I tell one thing is that if we face difficulties many times, repeat and again, so that difficulties become very easier for us. So for this purpose, we do our one attempt here, and for this I can say that मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई. That means if we repeat again and solve the problems, difficulties, it becomes easier. So it is our attempt. Now it is duty of that student that they appear for NET SET examination. They follow this workshop and they apply the activities which are done in this workshop. At last, I want to show that one thing very important, that this workshop is funded by our trust. It is very proud for us, and I give my best wishes to all the students. And again, I welcome to all of you, and I conclude my speech here. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Now we proceed to our first session of workshop. Our first resource person is Dr. Rasinkar. Now, may I call upon with due respect, Honorable Dr. Salma Madam. Hello, good morning to all of you. First of all,
I welcome you all on behalf of JT Trust, JT Management, Principal, staff, students. I welcome all the delegates in this national workshop of NetSet guidance. I congratulate the Department of Chemistry that they are organizing such type of wonderful event in a very small place, that is Malegaon, which is the small town in Nasik district, Maharashtra. I welcome you all. I appreciate the efforts which has been taken by HOD Professor Mohsin Pathan sir, Dr. Ansari Farzana madam, Dr. Adil Momin, that they struggled hard and motivated we all teachers. This is the first conference, online conference, which is going to be held in JT campus, and we are proud and privileged to have such type of uh, participants like you people. We are very happy to have with us. I am giving my best wishes to you all along with chemistry department to arrange or to organize such type of activity, and inshallah we will arrange it technically and with all formalities very correctly. I will come once again. Thank you very much. Have a nice day. Best of luck. Thank you, madam. Now, with due respect, I would like to call upon Professor Mohsin Pathan sir for the introductory part of the Dr. Rasinkar sir. Pathan sir. Hello everyone, this is Mohsin Badal. I am the coordinator of this course. Now, now it is a time, actually it is too late. Now it is a time to introduce our first session lecturer. That means I am talking about Dr. Rashinkar Gajanan Shankar Rao sir, who is assistant professor in organic chemistry at Shivaji University, Kolhapur. He is MSc PhD and he has 20 times NetSet qualified. He is also a research guide. 6 students were awarded by PhD under his guidance, and 3 students are working under his guidance. Now, he has also completed 60 MSc projects. His total publications are 60, 58 internationals and 2 are national level. He has completed 3 UGC funded projects. He has also obtained various honors and rewards. We are thankful to him for his acceptance of our invitations. I am handing over for the beneficial speech to the Dr. Rashinkar sir. Please, sir. Am I audible? Welcome, sir. Yes, sir. Sir, can you hear me properly? Yes, sir, I can hear you. Okay, okay. Sir, I can screen my share my screen also, no? Okay, sir. Okay, okay. So thank you, sir. And uh, okay, so I can see so many participants joining. First of all, I would really like to thank JIT College, Malegaon, for organizing this very wonderful workshop. I should really congratulate the entire organizing team, including Professor Pathan, for taking so many immense efforts, because you know that there is a lockdown and there are so many people who are organizing large number of seminars, workshops, conferences, and a majority of them are being organized for the teachers. But this is a very unique workshop, a national workshop, which has been organized for the students. And it has been organized on a very important topic like NET and SET, because the exam is very close. It is in the month of December. And therefore, I'm sure that this will be very much beneficial to all the students. So
I am really thankful to the entire organizing committee for giving me this wonderful opportunity to be in front of the students of Malegaon and nearby places. I had been to Malegaon at so many times, and a women's college in Malegaon, taking so many efforts for the women empowerment. Today is the establishment day of my university. Shivaji University was established on 18th November 1962. And today morning we had a flag hosting. And after flag hosting, I came here. And I don't think that there is any wonderful celebration than giving a lecture to the students of a women college. Because I personally believe that the future is going to be in the women hands. That we can see from the number of girl students in each and every class. When I see my class of MSc, there are almost 78% of the girls. And now that makes me, as a researcher, as a teacher, feel that the future is going to belong to women candidates. So it's a really great privilege for me to be here in front of all of you. I know there are certain male students also, but this is a women's college, and I should really appreciate the efforts taken by college for organizing this wonderful session. Now let me begin with my lecture. I will be taking a lecture for almost 1.5 hours. And in 1.5 hours, I will try to tell you how to prepare for NET exam. If you see me, I have an eye infection in my left eye last 15 days due to certain chemicals. So at certain places, I will close my eyes. It doesn't mean that I am doing it purposefully, but due to stress created on my left eye, I may sometime close my eyes and speak to you. I hope all of you will forgive me for this stand because of my infection. Okay, so let me begin. I hope I am audible, and I want the students to participate in this lecture. Because if the students participate, this would be a wonderful thing. I need only 45 minutes to tell you how to qualify NET and SET. But when I saw the wonderful sessions organized in this workshop, I am really surprised, and I really want to congratulate the entire organizing committee for such a wonderful lecture series. I can see Professor Pathan will be talking on logical reasoning and general aptitude. Professor Raj Tribhuvan on research communication. Professor Munawar on teaching aptitude. And let me tell you that I have organized so many conferences, so many workshops for NET and SET, but these points we really never included in our sessions. So this is a really going to be a wonderful feast for all the students, because teaching aptitude and research aptitude, all these points which are going to be covered today, they are really rarely covered. And let me tell you that I have an experience of 20 years of NET and SET teaching, 20 years. I started my career from Dhule in 2000 with my first lecture in NET and SET. And I have delivered more than 1,500 lectures on NET and SET. I have delivered more than 1,500 lectures on NET and SET. And, you know, this type of conglomeration, the chemistry topics on the second day, on first day, or mixed topics, including paper one, I have really never seen such a wonderful organization. So it's a great thing for me also, and a wonderful experience for me also. Okay, so now what I will do is, maybe, sir, which language we should prefer? Are there students from outside Maharashtra? Yes. Sir, you can use English language. It is universal, sir. Okay, I hope. Okay, now what I want is some of the students, you can use a chat section and please try to respond. Okay, so if you participate, if all of you participate, what you need to do is take a mobile and just type few things, okay, so that it would be interactive. Otherwise, what happens? You come, you just listen, you don't participate, then it would be a totally one-way session. Okay, I will be just speaking and you will be just listening. So let us make it interactive. Okay, so let me start with a good morning to all of you. Let me see how many of you reply with a good morning.
because this is a very wonderful morning. So let me see how many of you are active today listening. Okay, so yes, it's coming from teachers. Good morning, sir. Good morning, good morning. And you can use morning. audio also. Yes, good morning. And yes, Reena has replied, Sadaf and Shaheen. Yes. Okay, so nice of you. So nice of you. You can use audio also. Okay, you can use audio also. See, I am such a teacher. I always participate with the students. I participate with the students. And last 4 months, I am not feeling well because it is the first time in my life where I don't have students, right? Because I'm so much connected with the students that all the time I allow them to speak 70% time and 20% I speak, because I know that my students are more talented than me. They know much more than me. Only thing is I am a teacher, so I am sitting here, and being students, you are on to the other side. Okay. Some of you please take care that if you're not going to speak, please you can switch off your mics. Okay, that care we can take so that we can maintain the decorum of this workshop. I will be drinking a lot of water because doctor has prescribed me to drink water. Okay, so let me begin with NET and SET. Okay, so the first question I want to ask you. What I will be doing, 20 minutes I will talk general and 1 hour complete technical. In this, within, as soon as my lecture is finished, I will be providing you notes worth 3,000 rupees. Notes worth 3,000 rupees to Professor Patan sir's WhatsApp, and he will be sharing with you those notes. For chemistry people, I will be providing you books worth 1 lakh rupees by tomorrow afternoon, free from my side, because looking at your very exciting participation, I will be providing you all those things. Okay. First question I want to ask you. What do you feel about NET and SET? Is it easy or difficult? First question to all the participants. What do you feel about NET and SET? Is it easy or difficult? Okay. Replies from your side. You can use audio. You can use. Sir. Yes. Yes. Difficult. It is a moderate. Okay. Good. Very good. It's a political answer. Political answer. Okay, good. Yes, Sadaf is saying difficult. Yeah, please, others. Challenging. Depends on your fun. Reena, good, good. Please do speak. As easy as we think. Okay, not so easy. But we can crack this NET. Okay. But we can crack. If we work hard, we can crack, Good, inshallah. Good. Very good. Very, that's, I think that is a universal fundamental of the life, right? So I don't know who said this, but wonderful. Wonderful. Okay. And please see, being a student, you should always participate. You should always question to the teachers, right? And okay, so good. So there are 36 participants and 10 only have replied. What about others? Please do reply. Okay. Don't sit idle. Otherwise, even we also have a habit, no? If a conference is going on, somebody speaking, let him speak. Let us relax. No, that participate. This can change your life. Remember, it can change your life. A small participation can change your life. Okay, so good. See, it is a difficult, it is a easy, but let me tell you that NET SET is the most easiest exam. It is the most easiest exam for you at least. But usually what has happened, no? People, when we talk about people, wherever I go, people say that it is difficult. आप कहाँ पे भी जाइए? I had been to so many colleges. I still remember I went to Pune in one of the college. तो वहाँ पे सब MSc Part 2 के बच्चे थे. Okay. So I hope you can understand Hindi also. I will mix Hindi with English also. Okay. It's not the thing that I can speak English properly, but then if I can mix it, it would be right. It would be a good one. Okay. I can see all of your chats. Okay. I'm continuously watching them. तो मैं Pune गया and there was a lecture, MSc Part 2K. I think there were 40 students in the class. And the first question which I asked to them was, what do you feel about NET? आपका NET के बारे में आप क्या सोचते हो? NET exam easy है या difficult है? There were 40 students of MSc Part 2 Organic Chemistry. तो पूरे 40 students थे हाथ ऊपर किया and all of them said it is a difficult. It is a difficult. So I was really surprised. So the second question I asked them, how many of you have previously applied for NET? तो किसी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया. यानी उस क्लास में 40 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक भी बार एग्जाम नेट का नहीं दिया था,
बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनको सबको ये लग रहा था कि नेट इज डिफिकल्ट. नाउ यू टेल मी, इससे नेगेटिव एटीट्यूड का कोई दुनिया में आपको एग्जाम्पल दिख सकता है क्या? कैन यू सी एनी ग्रेटर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड देन दिस? क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, जिसने एक ही बार किसी ने भी नेट नहीं दिया, लेकिन लोगों का सुनते सुनते उनके दिमाग में ये प्रिजुडाइज हो गया कि नेट डिफिकल्ट है. सो रिमेंबर दैट, ये आपको पहले, सबसे पहले इसको आपको बाहर निकलना है. 20 साल से यही बात कह के आई हैव helped at least 5,000 students to qualify NET and SET. So let me start with a small presentation. Okay, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा. One thing I want to start with. Okay, now आपको सब, can you understand me properly please? यहाँ पे 4 सेक्शन में आप थोड़ा सा लिखिए. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Okay, good. Because what happens no Malegaon, आप you know your tone is different. We are from Kolhapur, तो यहाँ का tone different है. And many times people don't understand, right? तो कई बार क्या होता है, क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट पूछते हैं सर आप क्या बोल रहे थे, तो that should not basically happen. Okay, so let me begin with the 5 most important things. First thing I believe in the life is you should have a good aim, goal. बहुत सारे स्टूडेंट्स का गोल सेट नहीं होता है. A very good opportunity for you to set the goal is NET and SET exam, because NET SET exam you should know that अभी बहुत अच्छी opportunities आपको मिलेगी अगर आप NET SET पास हो जाओगे तो, because UGC has taken a very strict action, is going to take a strict action in the colleges who are not going to fill those posts. तो अभी बहुत सारे positions. Okay, Kamran, I can understand. I hope you can understand Hindi, right? Okay, so there are so many positions, vacant positions which are going to be filled, and there is a great opportunity for all of you to become a teacher or a researcher. And you know that COVID circumstances, people are going to spend more money on R&D. So chemistry is going to get a good chance. Okay, being a researcher, you can have a very great career. And dusra, become a teacher. See, once you become a teacher, oh, it's a noble profession. Let me tell you, noble profession. The satisfaction which I get when I teach 60 minutes in the class, you cannot imagine what happiness basically I get when I teach to my students, right? They have energy, they have a passion, and you're always in the young students, right? So I feel that NET SET exam ko you should not take that as a headache. Okay, English, right? Good. Okay, but I hope you can understand. Sabir, you can understand English, but you can understand English also. Good, very good. So what I feel is, please consider NET SET as your goal, aim, and that will really help you to make a successful career in your life. Otherwise what happens, नेट सेट के बारे में हम क्या सोचते हैं, इट्स अ बर्डन. नेट सेट बहुत डिफिकल्ट है, इससे शुरुआत होते हैं. सो नंबर 1, कीप इट एज योर एम. नाउ वंस यू कीप नेट एज योर एम, रूम में एक फोटो ही निकालो, पेस्ट कर दो, नेट इज माय एम, नेट इज माय गोल. तो हर दिन उसे देखो, एंड नाउ दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन. नहीं तो क्या होगा, यू विल ओनली लिसन टू टुडेस लेक्चर. आज कल अच्छा हो गया, खत्म हो गया, आप गए व्हाट्सएप, फेसबुक शुरू हो गया. That is how, these are the biggest obstacles of your life, Facebook and WhatsApp. That they will deviate you from your career. तो आपका पहला aim fix हो गया, नेट सेट is my career. Number 2, इसके अंदर एक ये maps. If I want to go to Google Map, तो यहाँ पे if I place a destination, अगर मुझे यहाँ पे कोल्हापुर में जाना है, bus stand, so I place a bus stand. A lady comes and she will tell you, turn left 2 kilometers, turn right 5 kilometers, turn 6 kilometers, right? ऐसे होगा when you put your target, net is my target. तो हर दिन आपको समझ में आएगा, today I have to do this, tomorrow I have to do this. It will help you, it will guide you. So number 1, keep it as your aim. Number 2, अगर आपको नेट सेट पास होना है, if you really want to pass net and set, what is most important thing that you should have is environment. एक अच्छा environment आप prepare करो. Make a group of 4 to 5 students, एक WhatsApp पे ग्रुप तैयार करो, and talk, speak, discuss about NET and SET. I have 1,000 groups on WhatsApp, 1,000 group, and Kolkata group is there. I am also a member of Bihar group. I am also a member of Assam group, and I have 22 groups from Jammu and Kashmir. All the time they are talking. ये आया था last time, ये problem है, इसको कैसे solve करना है. आजकल क्या discussion है? What is discussion going on? All of you know that. So please form a group. Environment के सिवा कुछ नहीं होता लाइफ में. जो environment में आप रहते हो,
ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे पीपल आर मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, कट आउट द नेगेटिव पीपल ऑफ योर लाइफ। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं रखा नेट सेट में यार, अभी तो खत्म हो गया, क्या है, किधर जॉब मिल रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहो, राइट। सो मेक अ ग्रुप एंड एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको इसको ये करना है, उसके अंदर आपको डिस्कशन करना है, टॉक विद द पीपल। नंबर 3, यू नीड मेंटोर्स इन योर लाइफ। अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो मेंटोर्स चाहिए आपको। व्हाट इज द मेंटोर? पीपल हु कैन गाइड यू। हमारा एम तो सेट है, एम तो सेट किया हमने, लेकिन मेंटोर ही नहीं है किसके पास। तो मैंने तो बहुत सारे लेक्चर्स लिए गोल सेटिंग पे, तो मैं हमेशा पूछता हूँ व्हाट इज योर एम, तो बच्चा बोलता है सर आई वांट टू बिकम कलेक्टर, आई वांट टू बिकम सो एंड सो, आई वांट टू बिकम सो एंड सो। हाँ, तो उसको मैंने बोला ठीक है यार, आपने तो आपका एम तो डिसाइड किया, लेकिन हैव यू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल हेल्प यू टू अचीव द गेम, हु विल हेल्प यू टू अचीव द गोल? नोबडी, किसी को डिसाइड नहीं किया। तो नेट सेट के लिए आपको कम से कम 5 मेंटोर्स आपको चूज करने हैं। वन मी, यू कैन इंक्लूड वन एज ए मी, आई विल हेल्प यू। 2, let the 2 teachers from your college, right? तो 3 लोग तो हो गए, एंड 2 जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स पास हो गए ना, उनको आप जाके मिलो, उनसे बोलो कि सर हम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड सेट एंड प्लीज बी माय मेंटोर फॉर 6 to 9 months। दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट यू। आजकल तो कोई भी नहीं किसी से मिलता, ये नेट सेट पास हो गया, ठीक है पास हो गया, हमारा एक क्लासमेट पास हो गया, आपने क्या किया था, कैसे पढ़ाई की, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। डिस्कशन सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही है, 5-5 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, क्या है उसके अंदर, डोंट नो। सो प्लीज at least have a 5 mentors. Okay, so number 1 what I said, environment. Number 2 is a mentor. Number 3, dedication. डेडिकेशन के सिवा कुछ नहीं मिलता लाइफ में, डेडिकेशन के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज पर कहां है डेडिकेशन? वेयर इज द डेडिकेशन? टीवी, सोशल मीडिया ने हाईजैक कर दिया है पूरा। व्हाट अबाउट डेडिकेशन? इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो, जब भी देखो तो पढ़ाई करते रहो। दैट शुड बी योर स्पिरिट। मुझे स्टिल आई रिमेंबर 1998 when first time I started preparing for NET and SET. मैं इतना पढ़ाई करता था। My mother, now she is retired, she was a संस्कृत teacher. Now imagine संस्कृत teacher, तो उतना प्रिंसिपल्स था उसका। मैं इतना पढ़ाई करता था, एक दिन वो इतना मेरे पढ़ाई से ये हो गई, गुस्सा हो गई, मेरे बुक्स जाके रोड पे फेंक दिए और उसने बोला कि आप पागल हो जाओगे इतना पढ़ोगे तो। Now that was the biggest compliment of my life. A retired teacher who is my mother, वो बोल रहे कि इतना पढ़ाई मत करो। That was my dedication, and because of that I qualified NET and SET for 20 times. Now don't ask me why I qualified for 20 times. मुझे गिनीज बुक में नाम करना था, so that is the reason I qualified that. इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो। आजकल क्या हो रहा है, कल एग्जाम है तो आज ही बच्चा पढ़ाई कर रहा है। So please dedication, and let me tell you, passion and dedication, ये 2 चीजें लाइफ में चाहिए आपके पास। 2 चीजें, कभी कोई भी चीज करो पैशन के साथ करो, डेडिकेशन के साथ करो, ताकत चाहिए उसमें, पैशन चाहिए उसके अंदर, तभी होगा। नहीं तो क्या है, अब पढ़ाई करना है नेट का, पूरा प्रायोरिटी सब दूसरी चीजों को दे रहा है स्टूडेंट, बाद में फिर वो अगर वक्त मिल रहा है तो पढ़ाई करेगा, तो ये नहीं चलेगा। ओके, सो थर्ड इज अ डेडिकेशन। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, एटीट्यूड के बारे में मैं बोल रहा था। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर सबको। इज एवरीबडी गेटिंग दिस? आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। 5 minutes. Yes, sir. Yes, sir. It's Yes. fantastic, sir. Okay, student friends. Okay, Swati, Reena, good. Please do reply, because if you reply, then only I will be able to understand. And your small reply, yes, no, will definitely help me to take my lecture in a good way. Okay, so thank you so much. So next part, that is the last but one part of my general part. उसके बाद मैं technical session में जाऊंगा. The next part is attitude के बारे में मैं बोल रहा था. I was telling you the story of Pune class, जहाँ पे मैं गया, and 40 students of MSc Part 2, इनको मैंने पूछा what do you feel about NET? 40 के 40 students ने बोला कि NET is very difficult. And when I asked them, how many of you have earlier appeared for NET set? None of them already earlier appeared. तो इतना negative attitude. तो ये negative attitude से क्या होता है? Let me start sharing my screen. Okay. So what I will do, I will share you the screen. Okay. So क्या होता है? I will tell you before sharing my screen. NET set. बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? NET set is difficult. NET set is difficult. तो इस स्टोरी में आपको I don't want that every one of you should agree with my views. Okay. तो क्या होता है? I will tell you.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड्स, ऐसे मैंने कहाँ पे तो पढ़ा था, बिकॉज आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री एंड कंप्लीट मेरा लाइफ केमिस्ट्री में है। अभी यहाँ पे सर पूरा बुक से केमिस्ट्री का मेरे रूम में, लेकिन मैंने एक लेक्चर सुन रहा था तो वो बोल रही थी कि आपके दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो अभी आप जो सुन रहे हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड में सुन रहे हो, और अंदर एक माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। और एक मैंने बुक पढ़ा था सीक्रेट नाम का, तो उसमें क्या लिखा है कि आप जो भी कुछ चाहोगे वो आपको मिलेगा। और उसका उसमें वो मेथड लिखा था कि जो कुछ आप सोचते हो, हमेशा बार बार सोचते हो, जैसे आप बार बार सोचते हो वो कॉन्शियस माइंड में रहता है, और बहुत बार सोचने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वहां से वो यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ जाता है। और यूनिवर्सल एनर्जी वो गॉड ने बनाया है, ऐसे बोलते हैं बुक में। और आप जो भी कुछ चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाता है, वो मैसेज जाता है यूनिवर्सल एनर्जी को, और फिर यूनिवर्सल एनर्जी ये चाहती है, ये सोचती है कि एक खुदा का बंदा ये चाहता है, और इसीलिए वो पूरी सिस्टम को वो होने में हेल्प करने लग जाती है। आई एम श्योर अभी आपको तो बहुत कंफ्यूजन हुआ रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको क्या करता, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। ओके, सो दिस इज, yes, I will share the screen. Okay, so hold on. Yes. Okay, so ये होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, इसको थोड़ा स्टैबलाइज होने के लिए एक आधा मिनट लगेगा। ओके, तो what I will do, टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार आ जाते हैं ऐसे ऑनलाइन सेशंस में, एंड वी हैव टू, बिकॉज वी आर नॉट सो रेडी, अभी तक इतना हम रेडी नहीं है। समटाइम्स कंप्यूटर बिकम स्लो, इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। whole of the last 3 to 4 months some or the other technical problem I am facing, within a minute ये हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं कि हाउ द नेगेटिव एटीट्यूड doesn't allow us to pass. Oh, it's not coming. Okay, so this will take a time, because कोई भी अगर अच्छी चीज होती रहेगी तो डिस्टर्बेंस आएंगे, that you have to understand in your life. Okay, so blank screen है, I am sure still. Let me start with a story. Oh, ये subconscious mind, conscious mind का, why it's not coming, I don't know. Yes. I will share my PPT with you also. Yes. This movie, I hope you must have heard a movie, Om Shanti Om, and उसके अंदर एक फेवरेट डायलॉग है, कहते वो सिद्धत से कुछ चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। दैट इज वन डायलॉग आई वांट टू टेल यू। तो क्या हो रहा है, आप जब बोल रहे हो ना नेट इज डिफिकल्ट, नेट इज डिफिकल्ट, नेट इज डिफिकल्ट, कभी भी बोलना नहीं है। जब सोचती भी हो तो सिद्धत से कुछ चाहोगे तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और वहां से यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ जा रहा है कि नेट इज डिफिकल्ट, नेट इज डिफिकल्ट। इस बंदे को नेट डिफिकल्ट चाहिए, और पूरी कायनात फिर काम करने में लग रही है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू से कि नेट इज डिफिकल्ट। सो प्लीज, आप नेट तब तक नहीं पास होगे जब तक आप आपके माइंड में से ये नहीं निकालोगे कि नेट इज डिफिकल्ट। सो आज के बाद हमें क्या बोलना है, नेट इज इजीएस्ट एग्जाम, इजीएस्ट एग्जाम, नेट इज इजी एग्जाम। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है दुनिया में, हम बनाते हैं उसे डिफिकल्ट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वांट टू टेल यू। सो ये दिस इज द फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। एंड फाइनली, if you want yes, if you want to pass net and set, there are two types of people, students. One who are only putting hard work, and second, people doing smart work. तो हार्ड वर्क क्या है? इफ यू वांट टू पास नेट, तो आपको क्या पता है कि नेट पास होना है ना, तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो व्हाट द स्टूडेंट इज डूइंग,
वो लाइब्रेरी में जा रहा है, बुक्स ले रहा है, एक बुक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे पढ़ाई कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है उसको. दैट इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क. सो हार्ड वर्क इज ओनली रीडिंग द बुक्स. स्मार्ट वर्क क्या है? बुक्स तो पढ़ने ही है, लेकिन सिस्टमेटिकली. पहले आपको ये जानना है कि पढ़ना क्या है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो व्हाट आई फील इज कि अगर आपको नेट सेट पास होना है, तो these are the 5 most important things that I want to tell you. So quickly I will revise. Okay. So what are those things? First thing which I told you is number 1, NET should be your goal of your life. आज के बाद NET is not a simple exam. It is your goal of your life. Number 2, आपको 5 mentors within 2 to 3 days आपको select करने हैं. Okay. And once you select those 5 mentors, उसके बाद आपको क्या करना है? Once you select the 5 mentors, उसके बाद environment आपको prepare करना है. Make a group of the students. Okay. Number 4, after the mentors, number 4 is positive रहना है आपको. NET is easiest exam. And number 5, आपको smart work करना है. Okay. So I hope अब तक समझ में आया आपको. Do you feel that this part of the lecture was important? Because now I will turn to technical session. Some of you, please, if you can reply. Do you believe? आपको ये लग रहा है कि नहीं? Do you feel that नहीं ये कुछ important नहीं था sir? आप you are just wasting our time. Please do reply. No, sir, it is benefited. Okay. So Reena has replied. Other people, do you believe that जो मैंने बोला अब तक that was very important? Yes, Please sir. do reply. Yes, sir. Okay. If you don't reply, I will feel that no, it was not important. Okay. Okay. So good. Now, Abhi, let us start. Okay. Let us start with the next 1 hour. I need. Patan sir, I think मेरे पास एक 1 hour है अभी, बरोबर है? 45 minutes to 1 hour. Sir, please continue, sir. Yes, sir. Now, okay. So, Abhi, what we will do. Chalo, let's. Abhi, I want to identify the most interactive student of the class also. उसको मेरे तरफ से gift मिलेगा most interactive student को. तो मैं देखूंगा अभी कैसे reply आएगी मुझे. Okay. So I will be putting your names also. Okay. तो अभी just tell me some of your ideas. Okay. If you are a student. And अभी आपको नेट का प्रिपरेशन करना है. If you want to start your preparation. अरे ये क्या हो रहा है? You are a student and you are going to prepare for net and set. तो चलो, tell me how you will start. कैसे करोगे आप? Few questions, few answers from your side. Good morning, sir. Yeah, good morning. So I'm Zoya Khan. I'm from Pune. Okay, great. So I think the first step is the syllabus. I'll first download the syllabus and I'll first learn. You'll have to learn the syllabus to begin. You should know Yes. your syllabus well. Excellent, Zoya. Yes, that is what I always feel. Yes, Aishwarya also said basic. Aishwarya want to start with the basic. Other people, please participate. Reena, first pattern of paper. Good, Reena. All good answers. Yes. Other people, please do participate. Yes, Wasim, first analyze the question paper. Excellent, Wasim. Excellent. Use Yes. previous paper. Yes, Mahesh is also excellent. Jesh, do speak. Kajal, you're not spoken. Right? Hello, Namra. good morning, sir. Yes, good morning. Do participate. Sir, good morning, sir. Sir, Yes, use previous paper. Very good. Yes. And make a timetable, Reena. Good. Namra, analysis of paper. Right? Hey, if I spell your names wrongly, do not mind that. Okay. Okay, sir. Yes. And okay, Kamran. Yes, use of previous question paper. Aishwarya, time management, most important thing. Time management. I am reading a book on time management now. Excellent. Okay, good. I will tell you how people start. That is, I will tell you how people start. So how the students start? तो उनको पता है. Oh, okay, sir. Very nice. Positive thinking, sir. College की तरफ से according to question pattern. Excellent, Sadaf. Okay, let me begin. How you should start?
let me take you to all of you are from chemistry or you are from different subjects also? So we are from English. From chemistry. Okay, okay. It's a mixed Yeah. one. Okay, so few things I will pick on. Let me start 1998. I started in 1998. Okay. अभी तो आपके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई करनी शुरू करनी है आज का लाइफ में. रिमेंबर दैट इन लाइफ वी नीड अ टर्निंग पॉइंट. लाइफ में कई बच्चों को कई जगह पे मिलता है. तो फॉर सम ऑफ यू टुडेज डे इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट. एंड थैंक्स to this college for giving you this turning point, because I know by 2 days many of you will be inspired and you will qualify NET and SET, and I'm sure that some of you may turn as a yes Radha Krishnan, right? So what is very important is, let me tell you how I started in 1998. 1998 में मेरा MSc हो गया था. उस टाइम गूगल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था. तो I started 1998. तो मैंने पहले उस टाइम तो, आज तो आप नेट को डिफिकल्ट बोलते हो, उस टाइम लोग बोलते थे नेट इज इम्पॉसिबल. और एक ही बच्चा था जो यहाँ पे पास हो गया था शिवाजी यूनिवर्सिटी में. और जैसे वो रोड पे जाता था ना तो लोग बोलते थे अरे वो नेट पास हो गया. तो हम उसको एलियंस को कैसे देखने, एलियंस तो किसने नहीं देखा, लेकिन अगर कैसे देखोगे वैसे वो स्टूडेंट को जाके देखते थे. तो इतना क्रेज था. तो फिर क्या हो गया, मैंने सोचा 1998 में कि चलो अब मुझे नेट सेट की पढ़ाई करनी है. तो लोग तो बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल एग्जाम, तो कैसे करना है अभी. एवरीबडी, माय फ्रेंड्स आल्सो सेड अरे नहीं मत करो. बट आई स्टार्टेड एंड लाइक जोया सेड, उस टाइम मैंने सिलेबस लिया, केमिस्ट्री का सिलेबस. अभी देखो क्या हो गया सिलेबस देखने के बाद. सो देयर वेर 34 चैप्टर्स. केमिस्ट्री के सिलेबस में 34 चैप्टर्स थे. तो मैंने सोचा 34 चैप्टर्स तो नंबर तो बड़ा है ना. फर्स्ट चैप्टर देखा, नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो मैंने सर को हाथ लगाया क्योंकि यहां पे पूरा पेपर था एमएससी में और उधर एक चैप्टर था. दूसरा चैप्टर देखा, स्टेरियो केमिस्ट्री. सर को हाथ लगाया, यहां पे वो तो पूरा पेपर था. तीसरा चैप्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहां पे पूरा पेपर था. तो मैंने सोचा यार ये 34 चैप्टर्स नहीं है, नाम ही चैप्टर है, पूरा पेपर है. तो 34 चैप्टर्स का सिलेबस 34 पेपर जितना था. और टाइम मैनेजमेंट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. इमीडिएटली मैंने टाइम मैनेजमेंट किया. उस टाइम तो सेमेस्टर नहीं था हमको. तो फिर उस टाइम में एक साल में हम 4 पेपर की पढ़ाई करते थे. तो मैंने सोचा एक साल में 4 पेपर तो 34 चैप्टर्स यानी 34 पेपर्स, इसका पढ़ाई करने में कितना दिन जाएगा, 9 years का मल्टीप्लीकेशन निकला. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, व्हेनेवर यू सी द सिलेबस, आपको पहली इंस्टेंट में लगेगा कि सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट. केमिस्ट्री में 34 चैप्टर्स है, दे आर लाइक 34 पेपर्स. इजी नहीं है. मेरा छोड़ो, फिजिक्स देखो, वहां पे तो एक चैप्टर एक स्पेशलाइजेशन है. रीना में, यहाँ पे रीना नोज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐश्वर्या नोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वहां पे फिजिक्स में यहाँ पे एक चैप्टर एक पेपर है ऑर्गेनिक का, उधर फिजिक्स में एक चैप्टर एक उनका स्पेशलाइजेशन है. इतना सिलेबस वास्ट है. सो मेरा जैसे एज जोया सेड, मैंने सिलेबस लिया एंड जैसे मैंने सिलेबस देखा तो एट फर्स्ट इंस्टेंट आई थॉट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ये डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि 34 चैप्टर्स करने के लिए बहुत देर लगेगा. नाउ yes, Ansari is from physics. I hope she will agree with what I said. Okay. Now, तो लेकिन I decided चलो कुछ भी हो जाए, लाइफ में I never got distracted. Let me tell you, I never got distracted in my life. Reason is मैं कभी किसी की सुनता नहीं, जो मेरे माइंड में ठान लिया वही मैं करता हूं. तो मैंने सोचा चलो 34 करना है, 10 साल लगेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू तो करना है. तो आई स्टार्टेड. लेकिन उस टाइम सोलापुर में एक वीआईटी कॉलेज है, इट्स अ प्लेस इन महाराष्ट्र, सोलापुर. तो वहां पे एक वर्कशॉप था नेट सेट का. तो उस वर्कशॉप के लिए मैं गया और वो वर्कशॉप केमिस्ट्री का था. और वहां पे प्रोफेसर वाडिया, केमिस्ट्री के एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट प्रोफेसर वाडिया, एन एक्सलेंट टीचर. अगर आप यूट्यूब में उनका नाम लिखोगे ना यू विल सी ही इज एक्सलेंट टीचर ऑफ केमिस्ट्री. तो फिर वो वहां पे आए थे और जैसे आए थे तो वहां पे मैंने पूरा लेक्चर सुन लिया. और लेक्चर के बाद मैंने उनको बोला कि सर, उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी डाउट. तो आई सेड यस सर आई हैव अ डाउट. तो बोले क्या है. तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि सर केमिस्ट्री के सिलेबस में 34 चैप्टर्स है,
तो मुझे आप ये बताइए, ये 34 चैप्टर्स कौन पूरा कवर कर सकता है, कौन पूरा पढ़ाई कर सकता है? उस टाइम वाडिया सर नेट सेट के कोऑर्डिनेटर थे, सेट के कोऑर्डिनेटर पूना के। ओके, तो वाडिया सर मेरे पास आए और मुझे मेरा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने बोला राशन कर। तो फिर ऐसा मेरा ईयर को पकड़ा, तो बोले सुनो, 34 चैप्टर्स इंसान के बस की बात नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता 34 चैप्टर्स की पूरी पढ़ाई। और जरूरत ही क्या है आपको 34 चैप्टर्स पढ़ाई करने की, क्यों कर रहे हो 34 चैप्टर्स? ऐसे वहां पे उन्होंने मेरा कान पकड़ के बोला। अभी स्टूडेंट है तो फिर ऐसे तो होता रहे, टीचर कैन नो। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार मेरा क्लास में इंसल्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे सर ने रिप्लाई किया। लेकिन उस दिन मेरी लाइफ की फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मुझे वहां पे मिली, वो वर्कशॉप में। बिकॉज उस टाइम गूगल बिगल इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था। और वो क्वेश्चन पेपर लेके मैं घर की तरफ आ रहा था, और जैसे मैं घर की तरफ आ रहा था ना, बस से जा रहा था, तो मैंने बस में वो क्वेश्चन पेपर देखा। तो उसमें लिखा था देयर आर 34 चैप्टर्स इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो एकदम स्ट्राइक हो गया, अरे ऐसे तो नहीं है कि ये पेपर में 34 चैप्टर्स है और अपने सिलेबस में 34 क्वेश्चंस है, ऐसे तो नहीं है हर एक चैप्टर पे हर एक क्वेश्चन। तो सिलेबस तो तब भी मेरे पॉकेट में था, आज भी मेरे पॉकेट में है। तो इमीडिएटली मैंने वहां पे एनालिसिस शुरू कर दिया और मेरा गेस सही निकला। सिलेबस में 34 चैप्टर्स थे और पेपर में 34 क्वेश्चंस थे। और मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट कब आया, जब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड नोट पढ़ा वहां पे। उसमें लिखा था अटेम्प्ट एनी। साउंड प्रॉब्लम सर। हाँ नहीं नहीं कर रहा हूं सर उसको, आई डोंट नो व्हाई। साउंड आ रही नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। So not hearing. ओके अभी देखो। Yes, हेलो। sir. हाँ ओके ओके। Yes, sir. यस दिस इज वेरी सेंसिटिव, इसको थोड़ा भी टच हो गया। ओके तो फिर उसमें क्या था? नहीं नहीं होगा, कामरान प्लीज हैव पेशेंस, सब होगा। अभी 40 मिनट्स में यू विल क्वालिफाई। जयस क्यों वो जयस प्लीज डू नॉट प्रेजेंट, डू नॉट प्रेजेंट। ओके, आपके मोबाइल से आप प्रेजेंट का बटन मत दबाइए। तो फिर क्या हो गया, अटेम्प्ट एनी 14। तो मैंने सोचा कि यार वाडिया सर तो बराबर बोले कि 34 चैप्टर्स की पढ़ाई करने की जरूरत क्या है आपको। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे बस में सोचा कि चलो यार 34 चैप्टर्स में 34 क्वेश्चन है, 14 ही अटेम्प्ट करने, तो हम 14 ही करेंगे। लेकिन माइंड में फिर ये प्रॉब्लम आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं है, 14 करोगे तो सिचुएशन बहुत टाइट होगा, अगर कहीं पे भी एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मैंने 14 की जगह 17 क्वेश्चंस, 17 चैप्टर चूज किए। ओके बस में। तो फिर मेरा पहला स्ट्रैटेजी तैयार हो गया कि आई विल स्टडी ओनली 17 चैप्टर्स। तो अभी कितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं जोया, आप बताइए। अगर मैंने 17 चैप्टर्स सिलेक्ट किए तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व फ्रॉम नेट 1998? 17 बराबर है। और कुछ भी हो जाए तो 14 में कर सकता हूं, राइट? Yes, sir. 15, Yes. 15 at least you can solve 14 to यस 15. यस 17 में से तो उतना तो डेफिनेटली होगा। ओके अभी मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर था, एक ही क्वेश्चन पेपर था। अभी दूसरा कहां पे था? तो ऐसे नहीं है व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया आई वांट क्वेश्चन पेपर, उस टाइम नहीं था। तो फिर मैं मेरे पिताजी की तरफ गया एंड पिताजी को मैंने बोला कि मुझे एक थोड़ा पैसा चाहिए। तो माय फादर सेड क्यों? तो मैंने बोला कि मुझे क्वेश्चन पेपर ढूंढने जाना है। तो मुझे कौन सा क्वेश्चन पेपर? तो मैंने बोला कि मेरे पास सेट का एक क्वेश्चन पेपर है, मुझे दूसरा क्वेश्चन पेपर ढूंढना है। तो वो बोले कहां मिलता है? मैंने बोला पता नहीं। तो कहां पे जाएगा? मुझे पता नहीं। कितना पैसा चाहिए? तो मैंने बोला उस टाइम 1000 रुपीज दे दो। तो उन्होंने मुझे 2000 रुपीज दिए। और आई वांट टू शेयर दिस स्पेसिफिकली विद ऑल ऑफ यू बिकॉज आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी कमिटेड स्टूडेंट्स। 2000 रुपए लेके मैंने मेरा सेट का दूसरा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, एक में ऐसा हो गया अगर आज बारिश हो गया तो हर एक साल बारिश गिरेगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, राइट? तो मैंने 2000 रुपीज लेके जर्नी शुरू किया। आई विल टेल यू हाउ आई स्टार्टेड। ओके तो मेरा माय प्लेस इज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट परंडा। वहां से मैं बार्शी नाम की जगह पे गया। तो वो कॉलेज में जाता था मैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सर आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या? आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या? तो बोलते नहीं
तो फिर वहां से अगले गांव मैं 8 days I was traveling with those 2000 rupees. And you will be surprised to know मुझे सेकेंड क्वेश्चन पेपर वर्धा में मिला. वर्धा. एट योर एज वो 2000 रुपए लेके 8 days में दूसरा क्वेश्चन पेपर ढूंढने के लिए गया. That was my dedication. That was my commitment. And I qualified NET and SET for 20 times. आज बच्चों को बोलो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर है, वो मैसेज नहीं भेज रहा है भेजने के लिए. सो मैं वहां पे गया. 8 days के बाद वर्धा में मुझे 2 ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिले और दोनों ही क्वेश्चन पेपर में क्या हो गया कि 34 ही चैप्टर्स पे 34 ही क्वेश्चंस थे और वहां पे लिखा था अटेम्प्ट एनी 14. तो उसी दिन पूरा मेरा स्ट्रैटेजी फिक्स हो गया कि चलो अभी हमको 14 क्वेश्चंस 17 चैप्टर्स ही पढ़ाई करने, उसमें से हम 14 कर सकते हैं क्वेश्चंस, कोई भी डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. और इसीलिए मैंने उस टाइम सिर्फ 17 चैप्टर्स का पढ़ाई किया. अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. टेल मी, अभी 2 स्टूडेंट्स है, एक मैं जो सिर्फ 17 चैप्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूं और दूसरा पूरे स्टूडेंट्स जो 34 चैप्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं. तो हु इज अ बेटर स्टूडेंट? कौन बेटर स्टूडेंट है? So the one who's studying for 17 chapters, but the 17 chapters should be thoroughly studied. Yes. लेकिन वो 34 smart study. Yes, smart study, because that was my student perspective. आज टीचर के, if I am a teacher today, I will say you should study all the chapters. लेकिन उस टाइम because I was a student, I was desperate, मुझे पास होना था, बराबर है, मेरा करियर था. Because you know your parents will not wait once you complete your PG. तो उनको शादी करना था मेरा, मुझे जॉब में ये करना था. तो उस टाइम my option was right and I did 17 chapters. बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई की और उसी साल में पास हो गया. So I will now cut off the story and start with complete technical session, 20 minutes. And I'm sure that Kamran and everybody will get all your answers. Okay, so my first thing that I want to tell you is, if you want to pass NET and SET, आपको क्या करना है? Get the old question papers and syllables. पहले syllables और दूसरे old question papers. आपको old question papers लेने हैं. Okay, कैसे करना है? So let me start with again screen sharing. Okay, so screen sharing again, ये तो time लेगा थोड़ा सा. Oh, oops, hold on. पहले मैं screen set करके लेता हूं और बाद में share करता हूं. तो क्या होगा? That would be more better. Okay. Best window or entire screen. Okay. पूरा entire screen ही share करूँ तो yes. Hope you can see this. No, sir. Screen अभी नहीं आ रहा है? So we No. can see it. We can see it. Okay. 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 तो अभी now please focus now. पूरा next 20 minutes most important part of your life. थोड़ा इतना एनर्जी नहीं है मेरे स्पीकिंग में बिकॉज आई स्टिल एम हैविंग अ वीकनेस. ओके, तो थोड़ा अदरवाइज जब तक कोई एनर्जी नहीं आता, नहीं तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स विल से अरे बहुत लेक्चर बोरिंग हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग विथ मैक्सिमम ऑफ माय एनर्जी. फर्स्ट थिंग, गेट द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स. कामरान, कितने क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं आपको? एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली पूछोगे तो आई विल टेल यू, आपके पास जितने ज्यादा होगे उतना जल्दी पास होगे आप. अगर आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर है तो आप 4 साल के बाद पास होगे. आपके पास व्हाट इज दिस कमिंग ऑन? ओके, अगर आपके पास 4 ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो आप 2 साल में पास हो जाओगे. अगर आपके पास 8 ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो आप 1 साल में पास हो जाओगे. और अगर आपके पास 10 क्वेश्चन पेपर ओल्ड है तो आप 6 महीने में पास हो जाओगे. सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट सक्सेस of NET SET depends upon number of question papers you have. All the question papers are available on the net. Please download and print. पहला काम क्या करना है आपको? नंबर 1, प्लीज रिमेंबर दिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर. क्या करना है आपको? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर. तो व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है? टेक अ ओल्ड क्वेश्चन पेपर. एक क्वेश्चन पेपर आपको लेना है, कोई भी ले लो क्वेश्चन पेपर. टेक एनी ओल्ड क्वेश्चन पेपर. ओके, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसे टॉपिक वाइज एनालाइज करो. उसे टॉपिक वाइज आप एनालाइज करो. कैसे करना है देखो. ओके, सो जो है कैन यू सी दिस प्रॉपरली?
दिखाई दे रहा है सर? ओके, Yes, sir. यस यस, गुड। तो अब देखिए, यस, ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन पेपर, पता नहीं ये कौन सा है, लेकिन ये यहाँ पे ये दिस इज ऑफसेट एग्जाम। कामरान आपका वेस्ट बंगाल का अलग रह सकता है, बिहार का अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर था सेट एग्जाम का, सब्जेक्ट का। तो उसमें 100 क्वेश्चंस थे ऐसे, 100। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी सिलेबस साइड में रखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी टॉपिक है? यूनिट नंबर 2। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, कौन सी यूनिट पे है? यूनिट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी यूनिट पे है? यूनिट नंबर 5। ऐसे आपके सब्जेक्ट पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसका प्रॉपरली एनालिसिस करो, और वो क्वेश्चन के साइड में आपको वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे है ए लिखना है। और ए लिखने के बाद आपको क्या करना है? वंस यू डू दिस, ऐसा आपको एक टेबल तैयार करना है। मान लो कि अगर 10 यूनिट है तो यहाँ पे यूनिट लिखो 10, और यहाँ पे दिसंबर 19 का, जून 19 का, दिसंबर 18 का। ऐसे आपको यूनिट नंबर 1 पे कितने क्वेश्चंस थे दिसंबर 19 पे? 5, यहाँ पे 5 लिख लो। जून 19 में कितना था? सॉरी, 2 यूनिट पे कितना था? 2, 3। ये पूरा लिखना है और ये टोटल करनी है। अभी ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यूनिट बदल सकते हैं, दिस में वेरी। ओके, फॉर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ये अलग से रहेंगे, केमिस्ट्री में अलग से रहेंगे। तो ये एनालाइज आपको करना है। ये जितना आगे जाएगा इतना अच्छा रहेगा। ओके, सो आर यू गेटिंग दिस? हैज एवरीबॉडी गॉट दिस? प्लीज रिप्लाई विद द ऑडियो, because chat now I cannot see. Yes, sir. Okay, Yes, yes, sir. वेरी गुड। हाँ, अभी मुझे Yes, sir, I बताइए, understand. यस, अभी मुझे बताइए, ये किसी ने किया था क्या अभी तक? कामरान, हैव यू डन दिस? No, sir. ओके, यू आर नॉट डन दिस। ओके, आई विल टेल यू। अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होता है, आई विल टेल यू। मान लो कि अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा? ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो एक स्टूडेंट आया कॉमर्स का, 2015 में आ गया, और वो स्टूडेंट आ गया, सर मैं नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो पूरा फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट लास्ट स्टेज में मेरे पास आते हैं। और कोई भी आएगा, आज तक कोई भी फेल नहीं हो गया। माय रिजल्ट इज 100%। ओके, एंड नॉट टेकिंग विदाउट अ सिंगल पाई। ओके, तो ये स्टूडेंट मेरी तरफ आ गया 2015 में प्रोबेबली। सर, डायलॉग देखिए, पिछले 6 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, 12 टाइम्स 12 टाइम्स नेट, 12 टाइम्स सेट में फेल हो गया। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों फेल हो रहा हूं। तो मुझे ये तो शॉकिंग था। 6 इयर्स 12 नेट 12 सेट फेल हो गया। तो मैंने बोला कि आप सर सीरियसली पढ़ाई करते हो क्या? तो बोला सर बहुत पढ़ाई करता हूं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सीरियस पढ़ाई करते हो क्या? बिल्कुल सभी को पास होना है, सीरियसली प्रिपेयर किसी को नहीं करना है। लेकिन वो स्टूडेंट बोला सर मैं मॉर्निंग 6 to नाइट 12 o'clock मैं पूरा पढ़ाई करता हूं। इतना वो पढ़ाई करता था। तो मैंने बोला कि चलो यार इसको पूरा क्यों स्टोरी बताए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑल, तो डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते। तो मैंने उनको बोला कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या बोल रहा है सर। तो वो बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता मुझे। तो अच्छा, मैंने पूछा कि पहले उनसे क्वेश्चन पूछा, आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था क्या क्वेश्चन पेपर का? तो वो बोला कि सर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री में रहता है, हमारे इधर नहीं रहता, क्योंकि उनका कॉमर्स सब्जेक्ट था। तो हमारे यहाँ पे कुछ मेटल का टेस्ट रहता है, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो मैंने बोला यार वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं, ये जो मैंने अभी बताया था वो आपने किया था क्या? नहीं, ये जो मैंने अभी आपको बोला था। तो बोला सर इसकी जरूरत क्या है करने की? अरे मैंने आपने किया नहीं? तो बोला नहीं किया। तो मैंने बोला सर आपका तो बहुत यानी आईसीयू वाला केस है, बिकॉज ऐसे फनी मजे से बोलते हैं हम, नो सार्कास्टिकली। आपका तो मैंने बोला आईसीयू वाला केस है यार, आपने तो बहुत प्रॉब्लम किया। तो उसको बहुत सीरियस लगा। तो रात को हॉस्टल गया और रात को यही कोल्हापुर में रह के दूसरे दिन लेके आया। हाँ, अभी देखिए दूसरे दिन उसने क्या क्या एनालिसिस किया था। देखो दूसरे दिन वो आ गया तो ये एनालिसिस करके आ गया। देखो उस बच्चे को अभी देखो, 10 यूनिट थे और 10 यूनिट में यूनिट नंबर 1 पे उसको एक क्वेश्चन था, हाँ 3 एग्जाम में। यूनिट नंबर 2 पे कितना क्वेश्चन था? 3 था। यूनिट नंबर 3 पे 2 क्वेश्चन था। ऐसे अभी ये देखो ना आप, यूनिट नंबर 1 पे जो 3 साल में क्वेश्चन है वो 1 ही है, राइट? तो क्या समझ में आता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी जो नंबर है वो ज्यादा बदलती नहीं। यूनिट नंबर 2 पे 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन कहीं पे बदलती है, लेकिन इतनी भी नहीं बदलती, 9, 8, 11। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये बच्चा करके आया। ओके, तो अभी देख लो, पूरा देख लिया सबने? कैन यू सी दिस एवरीवन?
द एनालिसिस ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। अभी देखो, अभी मैंने ये स्टूडेंट से पूछा कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने टॉपिक्स चूज किए 10 में से। तो ये स्टूडेंट बोला सर मैंने 6 टॉपिक्स चूज किए, 6 टॉपिक्स। अभी समझ लीजिए कि अगर, हाँ प्लीज, किसी का तो ऑडियो ऑन है, तो इफ यू कैन प्लीज स्विच ऑफ द ऑडियो। कोई ऑडियो किसी का तो रॉन्गली ये हो गया है, हाँ प्लीज डू स्विच ऑफ योर ऑडियोज इफ यू आर नॉट यूजिंग देम। ओके, तो ये स्टूडेंट ने 6 टॉपिक्स की पढ़ाई की, 6 टॉपिक्स की। अभी 10 में के 6 टॉपिक्स मीनिंग 60% ऑफ द सिलेबस। इंडिया में ये यही स्टूडेंट रहेगा जो पूरा 60% सिलेबस का पढ़ाई कर रहा है। मैंने सिर्फ 27% सिलेबस चूज किए करके मैंने कितने बार नेट सेट क्वालिफाई किया। तो मैंने बोला सर 10 में के 6 चैप्टर्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हमारे हीरो हो गए नेट सेट वालों के। आप मुझे ये बताइए आपने कौन से टॉपिक चूज किए, अभी देख लो कौन से टॉपिक चूज किए थे। तो वो बोला सर यूनिट नंबर 1 2 3 7 8 9 ये टॉपिक मैंने चूज किए। कौन से यूनिट्स? यूनिट नंबर 1 2 3 7 8 9। तो अभी मुझे ये बताइए अगर ये टॉपिक्स उन्होंने चूज किए यूनिट नंबर 1 2 3 7 8 9, तो उस पे कितना वेटेज है देख लीजिए। इस पे कितना वेटेज है? 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8। पूरे 6 चैप्टर जो उसने चूज किए उस पे सिर्फ 8 क्वेश्चन का वेटेज है, और जो छोड़ दिए उस पे मेजॉरिटी वेटेज है। तो व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, आपको इससे क्या लेना है कि आप जो भी टॉपिक चूज करते हो वो प्रॉपरली चूज करो। फिर ये बच्चे से मैंने पूछा सर आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपने यूनिट नंबर 1 2 3 7 8 9 क्यों चूज किया था? थोड़ा आई कैन हियर। यूनिट नंबर 1 2 3 7 8 9 आपने क्यों चूज किया था? तो ऐसे मैंने उन्होंने पूछा, तो उसने क्या बोला सर 1 2 3 इज माय एमकॉम स्पेशलाइजेशन, 1 2 3 इज माय एमकॉम स्पेशलाइजेशन, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। यूनिट नंबर 7 मुझे बचपन से ही पसंद है। यूनिट नंबर 8 सर ये नया टॉपिक है, ये किसी ने नहीं किया, मैं जाके इंटरनेट पे 200 घंटा बैठ के इसका प्रिपरेशन मैंने किया। और यूनिट नंबर 9 इसके मुझे नोट्स मिल गए, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई शुरू की। यूजुअली अगर आप कोई भी स्टूडेंट देखते हो, तो हर एक स्टूडेंट क्या होता है ऐसे ही प्रिपेयर करता है। वो क्या करेगा स्टूडेंट, एक जो कुछ उसका स्पेशलाइजेशन है वो चूज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, बाकी बच्चे जो टॉपिक है उसमें जो उससे अच्छे लगते हैं वो उसे चूज करेगा, राइट? और जो नोट्स मिलते हैं वो वही चूज करेगा। तो ऐसे यूजुअली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। ओके, आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं सिलेक्ट करने हैं, आपकी पसंद के टॉपिक यहां पे चूज नहीं करने हैं। आपके स्पेशलाइजेशन के टॉपिक यहां पे चूज करोगे तो ये स्टूडेंट जैसा आपका ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सी जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट सेट के हिसाब से, यू हैव टू चूज ओनली दोस टॉपिक्स। अभी कई बार क्या होता है, आई विल टेल यू, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो यहां पे हीरो है लेकिन वहां पे उस पे वेटेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक मैं आपको बताता हूं केमिस्ट्री का, एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इतना बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना डिफिकल्ट है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, और अगर एग्जाम में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 to 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं आपको बोल सकता हूं जो यहां पे लोग बहुत उसको ये मीनिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नेट सेट में उसका वेटेज नहीं है। और ऐसे कई सारे टॉपिक है जो यहां पे कोई पूछता नहीं लेकिन नेट सेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अगर केमिस्ट्री की आप पढ़ाई करोगे कर रहे, इफ यू आर स्टडिंग फॉर केमिस्ट्री, सिर्फ 4 टॉपिक के नाम मैं बोल सकता हूं जिसपे सबसे ज्यादा वेटेज है। और ये 4 टॉपिक जो सबसे ज्यादा वेटेज है ये कोई भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स कभी बात नहीं करेंगे। आई विल टेल यू कौन से नाम है। नंबर 1 इज ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, इस पे 40 मार्क्स का वेटेज है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री को है, और यहां पे हम सब बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियोकेमिस्ट्री। नंबर 2 इज
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उस पे 40 मार्क्स का वेटेज है। नंबर 3 इज क्वांटम केमिस्ट्री, उस पे 40 मार्क्स का वेटेज है। एंड नंबर 4 रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, उस पे 40 मार्क्स का वेटेज है। अगर ये आप 4 टॉपिक भी करते हो तो भी आप पास हो सकते हो, और बाकी के जो कुछ बचे टॉपिक्स है उस पे थोड़ा थोड़ा बहुत वेटेज है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मत पढ़ो, उससे लैंथेनाइड्स पढ़ो, उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और परफेक्ट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहां पे बनानी है। सो चूज, कौन से टॉपिक चूज करने हैं, ये नहीं जो आपके स्पेशलाइजेशन के, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक मेरा डायलॉग, एक गलत डायलॉग है लेकिन याद रखो, यहाँ के हीरो वहां जीरो, यहाँ के जीरो वहां हीरो। जैसे मैंने ये शुरू कर दिया बोलना स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया यार हम तो ब्लाइंडली पढ़ाई कर रहे थे, डायरेक्शन ही नहीं था, अभी हमें समझ में आया कि कौन से टॉपिक पढ़ाई करने हैं। तो ये मैंने शुरू किया स्टूडेंट से बात करना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होने लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो सिर्फ लेक्चरशिप पास हो रहे थे, वो सिर्फ लेक्चरशिप पास हो रहे थे। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा एनालिसिस किया, और दूसरी चीज मैंने बाद में एनालाइज की कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही टॉपिक ही चूज कर रहे हैं, बाकी के छोड़ रहे। इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, पास तो हो रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी के तो कुछ ही नहीं कर रहे, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो। तो फिर उसके बाद मैंने और एक उसमें थोड़ा इन्वेंशन किया, माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अभी माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है आप प्रॉपरली देखिए। तो माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या करना है, ये जो फॉर एग्जांपल आप एक यहां पे देखिए, यस, हाँ, तो ये एक मैप दिखाया था। तो ये मैप अभी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ए मैं नेट सेट का स्टूडेंट हूं, यहाँ पे मेरा सिलेबस, यहाँ पे मेरा टारगेट है, और ए टॉपिक ए टॉपिक ए टॉपिक ए टॉपिक ए टॉपिक मुझे चूज करने हैं। इट इज जस्ट लाइक वॉर। एक डायग्राम गलत है लेकिन ऐसे ही होगा। नहीं तो पहले चलो स्टूडेंट्स हमको वॉर खेलने जाना है, तो आप बोलो चलो 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 चलो, कहां पे पता नहीं, किससे पता नहीं। अभी समझ में तो आया कौन से टॉपिक चूज करने हैं हमको, कहां से जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। उसके बाद माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अभी एक दिखे, ये फिजिक्स का माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें हम क्या करते हैं, एक आधा जो चैप्टर है उसका सिलेबस हम सब डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। कि अभी एक कंडेंस मैटर फिजिक्स में ये सिलेबस था, तो हमने क्या किया, उसको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट में सब पॉइंट्स में उसको हमने डिवाइड किया। ओके, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप। मान लो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसमें लिखा है रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, रेड्यूसिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को ए, रेड्यूसिंग रिएजेंट्स को बी, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स को सी, ऐसे कर दूंगा। और अगर कुछ भी नहीं आता डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहली लाइन को ए, दूसरी लाइन को बी, तीसरी लाइन को सी, चौथी लाइन को डी, ऐसे करना है आपको। समझ में आया? तो ए होने के बाद अभी देखो, हाँ, तो पहला अभी फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 2 पे है, यही किया था हमने, ये सब बी नहीं था। अभी हमने क्या किया, माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, तो पता चला ये उसके बी सब पार्ट में है, बी सब पार्ट में, जो सिलेबस का, जो पूरा सिलेबस पे नहीं है, सिलेबस के अंदर का जो बी सब पार्ट है उसमें है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो कौन पे था, यूनिट नंबर 9 पे था, लेकिन कहां पे था, वो सिलेबस के डी सब पार्ट में था। ऐसे आपको जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का और माइक्रो लेवल पे एनालाइज करना है, और आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक्स में आते हैं, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऐसे करना है। देखो, ये स्टूडेंट फिजिक्स की थी, लड़की थी, और ये स्टूडेंट एमएससी के बाद मेरे पास आ गई, उसकी शादी करनी थी और उसके पेरेंट्स रेडी नहीं थे उसको नेट सेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन 30 डेज के बाद नेट एग्जाम था, रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे बोला कि 30 डेज हमें दीजिए। तो ये स्टूडेंट ने 30 डेज के अंदर नेट क्वालिफाई किया। कैसे किया, देखो, ये जो कंडेंस मैटर फिजिक्स था उसने ऐसे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, और देखो ए सब पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस ए सब पार्ट पे ही है, बी पे कई बार पूछा गया एक ही क्वेश्चन, सी पे तो कुछ भी नहीं था, डी पे था, ई पे नहीं था। तो ये लड़की ने क्या किया कि सर मैं कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ाई करोगी, लेकिन उसमें ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस ए सब पॉइंट पर रहेगा, ऐसे मैं पढ़ाई करूंगी, राइट। तो उसने ज्यादा फोकस ए पे किया और बहुत थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बी सी डी ई पॉइंट्स की। तो मुझे आपको ये रिक्वेस्ट करना है स्टूडेंट्स कि आप टॉपिक्स मत सिलेक्ट करो, आप टॉपिक मत सिलेक्ट करो, आप क्या करो, पूरा सिलेबस चूज करो,
पूरा सिलेबस पढ़ाई करो, लेकिन पूरे सिलेबस में क्या करना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ऐसे एनालिसिस करने के बाद आपको मिलेंगे, उसी पे ज्यादा फोकस करना है। तो अभी ये कैसा किस्सा हो गया मालूम है, पहले आपने चैप्टर सिलेक्ट किया था, अभी आप चैप्टर्स नहीं सिलेक्ट करोगे। अभी आप क्या हो रहा है, ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं कि नहीं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं वो ट्रे लेके, और फिर आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बाथिंग सोप्स है, तो आप क्या पूरे के पूरे बाथिंग सोप्स लेके आते हो, क्या नहीं आते, उसमें के 2 लेके आओगे। आगे बिस्किट्स रखे तो आप क्या करोगे, वो बिस्किट्स के पूरे रैक नहीं खरीदते, 3-4 बिस्किट्स के पैक लेते हो। ऐसे आपको नेट सेट सिलेबस का क्या करना है, चूजिंग करना है। चैप्टर 1 पूरा नहीं, 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट ले लो। चैप्टर 2 कुछ भी नहीं आता, छोड़ दो। चैप्टर 3 बी एंड सी पॉइंट, उसको बाजू को निकालो, राइट। अगर आप ऐसे पॉइंट्स निकालोगे तो मैं आपको एक बात बता दूंगा कि रिमेंबर दैट, जो आज तक हमने एनालाइज किया है उसमें हमने देखा कि एंटायर नेट सेट सिलेबस के अंदर कुछ ही ऐसे पॉइंट है जिसपे पूरा पेपर डोमिनेट हो जाता है। सो प्लीज सिलेक्ट पॉइंट्स, नॉट द चैप्टर्स, सिलेक्ट द पॉइंट्स। और कई बार तो ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल लॉ सब्जेक्ट में हमको 42 पॉइंट्स मिले हैं, सिर्फ 42 पॉइंट्स। अगर स्टूडेंट्स को आप बोलोगे ना इतना 42 पॉइंट्स अच्छा पढ़ो पास हो जाओगे, तो वो बच्चा हर दिन 1 पॉइंट करता है, 40 डेज में पास हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे हमने पॉइंट्स निकाले, तो आपको एक काम करना है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं, आपको पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। ओके, सो 1 मिनट में अभी ये स्क्रीन स्टॉप करता हूं शेयर करना, बाद में आ जाऊंगा क्योंकि 10 मिनट अभी चाहिए इससे आगे। बट ओके, सो ओके, तो स्क्रीन शेयर, आई होप स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। तो राइट, अभी तक का मुझे एक्सपीरियंस बताइए। चलो नाउ, जो मैंने बोला था माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट डू यू फील, माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आर यू गेटिंग दिस? आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट पॉइंट्स, you have to select points. Okay, so please your comments on this, क्या होगा, your comments on this? So if we choose micro quantitative analysis, Huh. and the way you said we divided syllabus into parts or like sub points, we will have a detailed study of the question paper. This will be a very detailed analysis, and we'll be focusing on the main points. Zoya, main parts. Zoya, Yes, right? sir. Na? Yes, I will sir. tell you, Zoya, I will tell you. One thing I learned in my life, Zoya. Okay, one thing. पूरी दुनिया एनालिसिस पे चलती है, पूरी दुनिया एनालिसिस पे चलती है। अभी ये मेरा YouTube दिखाता हूं मैं, ओके, YouTube। अभी मैं कुछ सब्लिमिनल नाम के कुछ मैसेजेस है, अगर मैं ये आपको दिखाऊंगा ना, तो जो मेरे माइंड में है ना, ये दिखा रहा है YouTube। तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो ये स्पिरिचुअल है ना, तो ये सब देखो, ये मेरा आएगा सब इधर, ऑल ये भी एनालाइज करते, पूरा एनालिसिस पे है। वर्ल्ड इज ऑन एनालिसिस। मैं जोया को एनालाइज कर रहा हूं, आप मुझे एनालाइज कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा हूं, मैं मेरे सामने मैं वाइस चांसलर को एनालाइज कर रहा हूं, उनको क्या पसंद है, कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, उसके मास्टर हो जाओ। नेट इज ऑल्सो एनालिसिस, इट इज ओनली एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, एंड नॉट ओनली क्वेश्चन पेपर का, दुनिया में कोई भी चीज रह गई उसका एनालिसिस करो। ओके, यू विल गेट द क्लूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट दैट। बराबर है ना? तो न्यूटन ने एप्पल नीचे गिरते देखा था, तो उसने एनालाइज किया, अगर मैं रहता तो खा के मैं आराम से बैठता, अरे इतना अच्छा नीचे गिर गया, कौन छोड़ेगा उसको? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर, एनालाइज। ओके, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लो, जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ आई विल टेल यू, अभी तो सर पठान सर, आई हैव 10 मिनट्स, अभी 10 मिनट है मेरे पास। Sir, continue. Please continue. Okay. Your lecture is so informative. Okay. Please continue. Okay. So, okay, Kamran, good. She's saying nice. आपके सब्जेक्ट में कर लो कामरान, and I will share you my mobile number also, and this time you will qualify. Okay? हमने नहीं किया था, कैसा ब्लाइंडली पढ़ाई करते लोग। ब्लाइंडली कैसे करना है, वो शुरू किया, कुछ भी पढ़ रहा है, क्या भी पढ़ रहा है, जो भी आ रहा है हाथ में पढ़ रहा है। यानी मुझे यहां से पूना जाना है, तो मैं किसी से पूछ रहा हूं नहीं, जो रोड दिख रहा है उस पर चल रहा हूं। तो कोई बोलता है सर आपको 250 किलोमीटर जाने के बाद पूना मिलेगा, अरे मैं तो चल रहा हूं रैंडमली, 250 किलोमीटर आने के बाद भी पूना नहीं आया। क्यों नहीं आया? डायरेक्शन नहीं है,
यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगा। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी थर्ड पार्ट, ओके, तो पूरा क्लियर हो गया अभी कि कितना करना है, कितने पॉइंट्स है, कितने चैप्टर्स है, कितने पॉइंट्स करना है, ये पहले आपने निकाल दिया बाजू को। ओके, और रिस्क तो रहेगा, देयर विल बी अ रिस्क, थोड़ा रिस्क रहेगा इसमें, बराबर है कि नहीं। अभी अभी जो पॉइंट्स निकला है उसका पढ़ाई कैसे करना है, अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डोंट अभी ये पूरा सुन लो, एक एक सेकंड भी मिस नहीं करना है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है। ओके, तो मैं अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ हिस्ट्री का। एक हिस्ट्री का स्टूडेंट आया मेरे पास, तो बोला कि सर मैं 8 साल से पढ़ाई कर रहा हूं हिस्ट्री का, और मैंने आज तक 20 बार नेट सेट में फेल हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे, क्योंकि मैं 20 बार पास हो गया था, वो 20 बार फेल हो गया था। तो मुझे बोला कि सर 8 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, और मैं पूरा 12 से 14 घंटा पूरा पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये दिस वॉज अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैंने बोला सर इतना पढ़ाई कर रहे हो, कैसे क्या नहीं पास हो रहे हो। तो मैंने बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है सर। तो देखिए आप प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मैं जो पढ़ता हूं वो एग्जाम में नहीं आता, मैं जो पढ़ाई करता हूं वो एग्जाम में नहीं आता। और आगे बोला मुझे तो डाउट है सर, जहां पे मैं पढ़ाई करता हूं ना लाइब्रेरी में, वहां पे ऊपर कैमरा लगाया है, कैमरा, और वो कैमरा में सब एग्जामिनर को दिख रहा है, और जो मैं पढ़ता हूं ना वो छोड़ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। मुझे चैलेंज मैं देता हूं सर, ऐसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा है। कुछ इतना मैंने पढ़ाई किया, कुछ भी क्वेश्चन उस पर पूछा नहीं जाता। तो ये तो बहुत सरप्राइजिंग था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है ऐसे, बराबर है। वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन उस पर क्वेश्चन ही नहीं आता। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे बताइए आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो बोला हिस्ट्री, एक आधा पॉइंट बताइए। तो उसने बोला सर छत्रपति शिवाजी का लीजिए। छत्रपति शिवाजी के बारे में मैंने 1.5 साल से पढ़ाई किया, 1.5 साल से, और मैंने उनके बारे में इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि उनके बाद उनके बारे में सबसे ज्यादा मुझे ही पता है। इतना मैंने उनके बारे में पढ़ाई किया, उनका टाइम का एनसाइक्लोपीडिया मैंने पढ़ा है, और मैं उन पे 2 पीएचडी का थीसिस भी लिख सकता हूं नॉन स्टॉप खड़ा रह के। इतना मैंने उनका पढ़ाई किया है। मैं उनका ब्लड ग्रुप भी आपको बोल सकता हूं, पूरा हिस्ट्री में आपको उनका बोल सकता हूं। लेकिन जब भी मैं एग्जाम में जाता हूं ना, उन पे मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता। तो मैं तो शॉकिंग हो गया। 1.5 साल से अगर वो छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाई कर रहा है, और वो उसका क्लेम है कि उनके बारे में उनके बाद सबसे ज्यादा उसी को पता है। वो स्टूडेंट का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, अभी वो क्वालिफाई हो गया, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में किसी से भी पूछो छत्रपति शिवाजी के बारे में सबसे ज्यादा किसे पता है, प्रोबेबली पीपल विल टेक हिज नेम। तो फिर मैं तो सरप्राइज हो गया, सर ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं बोला सर ऐसे ही हो रहा है। तो उस टाइम तो मेरे पास उनका कुछ आंसर नहीं था। लेकिन एक बार पूना में एक स्टूडेंट पास हो गया, और वो बिलीव ही नहीं कर रहा था मैं पास हो गया। तो मुझे वहां पे पूना में बुलाया था कि वो सर स्टूडेंट पास हो गया है, और वो उसका विश्वास ही नहीं बैठ रहा है। वो बोल रहा है कि गलती से मैं पास हो गया, रॉन्गली मेरा सर्टिफिकेट आ गया। ऐसे लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसे। तो फिर मैं वहां पे गया, तो वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या था, वो स्टूडेंट पास हो गया था बिना पढ़ाई किए, और इसलिए उसको ये ऐसा डाउट था कि वो रॉन्गली पास हो गया या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो फिर पूना जाने के बाद मैंने वो स्टूडेंट से पूछा कि आपको क्यों नहीं लग रहा है, कि आप क्यों नहीं पास हो गए, ऐसे आपको लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको कि मैं पास ही नहीं हो सकता, लक भी हो सकता है ना। नहीं बोला सर ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? अभी उसने मेरा उसका स्टोरी उसने मुझे बताया क्या होता। वो बोला कि सर मैं और मेरे दो मुझे नेट सेट का कुछ भी प्रिपरेशन इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने फॉर्म भर दिया, मैंने भी भर दिया। फिर एग्जाम जैसे नजदीक आ रहा था, तो मेरे सब स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए वो लाइब्रेरी में जाते थे। मैं हॉस्टल में बैठ के बोर होता था, इसलिए मैं भी उनके साथ जाता था। और क्या हो गया, 1 महीना मैंने पढ़ाई किया, ये सब बाकी के फेल हो गए और मैं पास हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, वो सीरियस थे, मैं विदाउट सीरियस कैसे पास हो सकता हूँ। तो ऐसे उसकी स्टोरी थी। तो फिर ये स्टूडेंट को मैंने बहुत कन्विंस करके उसको मैंने कॉन्फिडेंट दिया। तो फिर उसने विश्वास रखा कि सर यस मैं अभी मान लेता हूं कि मैं पास हो गया। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लकीली पास हो गए थे। ऐसे आजकल तो वो सिर्फ उसको सर्कल करना है, गोल गोल करना है, राइट, सर्कल
तो बहुत सारे लोग हैं, करते जाओ पास भी होते हैं, ऐसे लक का अभी इसमें रोल प्ले होता है। फिर मैंने बाद में पूछा कि सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसने बोला हिस्ट्री। और मैंने बोला यार, मैंने एक आदमी देखा 8 साल से पढ़ाई कर रहा है, जो उतना मन के लगन से पढ़ाई कर रहा था, वो नहीं पास हो रहा था, और ये विदाउट पढ़ाई कैसे क्या पास हो गया। तो चलो कंपेयर करें। तो मैंने इसको बोला सर आपने कैसे पढ़ाई किया मुझे बोलो। तो बोला सर 1 महीना मैंने 2 घंटा आप पढ़ाई किया। मैंने बोला वो तो 8 साल से पढ़ाई कर रहा था 12-14 घंटा। तो मैंने इससे पूछा सर आपने जो पढ़ाई किया वो एग्जाम में पूछा था क्या। तो ये स्टूडेंट क्या बोला, सर मैंने जितना पढ़ाई किया उसी पे सिर्फ क्वेश्चन आया। अभी देखो ये वाला क्या बोल रहा है, सर मेरे ऊपर कैमरा लगा है कि क्या, ऐसा डाउट है मुझे, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये बच्चा क्या बोल रहा है कि जितना मैंने पढ़ा उसी पे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने फिर उसको बोला आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा था क्या। तो बोला हाँ सर। कितनी देर पढ़ा था। वो बोला आधा घंटा। और मैंने बोला ये तो 1.5 साल कर रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने आधा घंटा। मैंने बोला आधा घंटा पढ़ाई करके आपने छत्रपति के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया क्या। तो बोला हाँ किया सर। तो मैंने बोला कि बताइए मुझे आपने कैसे उनका पढ़ाई किया। तो क्या बोला, देखिए प्रॉपरली, तब ये बहुत ओल्ड है, 2007 की स्टोरी है, तो उस टाइम इट वाज अ डिस्क्रिप्टिव, क्वेश्चन पेपर्स डिस्क्रिप्टिव थे। तो ये मुझे बोला सर मैंने 4 ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिए, एक साल में क्वेश्चन था डिस्क्राइब ऑन द सिल्वर ऑर्नामेंट्स इन छत्रपति शिवाजी जीरा। उनके काल में जो सिल्वर के ज्वेलरी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब ऑन द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन शिवाजी जीरा। उसके बाद डिस्क्राइब ऑन द डायमंड ऑर्नामेंट्स इन छत्रपति शिवाजी जीरा। तो ये बोला सर मुझे आइडिया आ गया कि छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था, कितने किले बांधे थे, ये कुछ नहीं पूछते तो सिर्फ ऑर्नामेंट्स के बारे में। और फिर मैं लाइब्रेरी में गया, मुझे वहां पे भी बुक नहीं मिला, लेकिन एक बुक में सिर्फ उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में लिखा था। और देखो बोला सिल्वर गोल्ड और डायमंड्स का ऑलरेडी पूछा था, वो छोड़ के मैंने बाकी का पढ़ाई किया। और लास्ट एग्जाम में मैं गया, वहां पे क्वेश्चन था डिस्क्राइब ऑन द कॉपर ऑर्नामेंट्स इन छत्रपति शिवाजी ईरा। अभी देखिए दो स्टूडेंट, एक क्या कर रहा है, चैप्टर का नाम लेके पढ़ाई शुरू किया, और दूसरे ने क्या किया, वो पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पेपर पूछते वो एक पेपर पे लिख लिए, ऐसे एक पेपर पे लिख लिए, बहुत क्रिटिकली पढ़ाई किया और उसको क्लू ही मिल गया। अभी देखिए कौन सोचेगा क्या कि छत्रपति शिवाजी के बारे में उनके ऑर्नामेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही होता है आपके पॉइंट्स में, जो आपके पॉइंट्स है ना उस पे क्वेश्चंस आपके इमेजिनेशन के बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं इमेजिनेशन के बाहर, क्योंकि आपका इमेजिनेशन क्या है, अभी ये समझ लीजिए क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है और यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। एक तो एप्लीकेशन बेस्ड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। और आज तक आपने क्या किया, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एलाबरेट, पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना, यही किया। लेकिन यहां पे अभी क्रिटिकल थिंकिंग आएगा क्योंकि क्वेश्चंस कैसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, राइट। तो यही डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द थर्ड स्टेप, जिसपे आपका कौन सा पॉइंट आपने लिया लिखिए, उसके नीचे उस पे क्वेश्चंस जो है लिखो, हाथ से लिखो। आजकल तो कोई लिख ही नहीं रहा है, लिखो 2018, 2017, 2016, 2015 और क्रिटिकली एनालाइज करो। क्वेश्चन बिकम योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बिकम योर मेंटर्स। क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, कौन से मोड से पढ़ाई करना है, और प्रॉपरली समझ में आएगा कि पढ़ाई किस चीज की करनी है और कैसे करनी है, राइट। सो आर यू गेटिंग दिस, ओके। हाँ, तो यूर कमेंट्स 1 मिनट, बिकॉज मेरे पास अभी सिर्फ 7 मिनट्स है, 7 to 11:45 आई हैव टू फिनिश इट अप। तो आपको कैसे लगा, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन। क्या करना है आपको, क्वेश्चंस एनालाइज करने, क्वेश्चंस एनालाइज करने। 30% क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल, 30% यही आएगा। आप जब करोगे तो समझ में आएगा आपको। 30% क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल, 30% 2-3 पॉइंट्स पे कवर है, और रिमेनिंग 40% अंदाज नहीं देंगे, लेकिन 30% का तो अंदाज आ गया ना आपको। एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, साइंस पीपल, क्वेश्चंस कैसे है, एप्लीकेशन बेस्ड। क्वेश्चंस कैसे है, एप्लीकेशन बेस्ड।
क्वेश्चंस कैसे? प्रॉब्लम ओरिएंटेड। क्वेश्चंस कैसे? प्रॉब्लम ओरिएंटेड। आर यू गेटिंग दिस? पूरा क्वेश्चन पेपर का अब ये स्टोरी बोल के बोलता हूं कि मुझे क्या बोलना था। ओके, लेकिन आई विल टेल यू। एक स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट, वो ही वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सदानंद यादव, केमिस्ट्री का। सदानंद आ गया कोल्हापुर में। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, गजानन राशनकर नाम डाल दीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस, मेरा ब्लॉग्स है इस पे लिखे। तो उस देख के आया था, तो आने के बाद आ गया कोल्हापुर में 2013 प्रोबेबली। ओके, बैग लेके रूम में आ गया, सर पाव छुआ, सर मैंने आपके बारे में बहुत सोचा था, अभी मैं यहां से पास होने के बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला आप कौन हो? तो मैंने बोला सदानंद यादव फ्रॉम वाराणसी, सर 2.5 साल से वहां पे पढ़ाई कर रहा था, कुछ नहीं जमा, इसलिए मैंने आपका नाम सुन के यहाँ पे आ गया। तो आने के बाद मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह थे, बहुत बार देता था। तो क्या बोला है देखो, बहुत स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, सर मैं यहाँ पे मोटिवेट होने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पास होना है, आप मुझे एक लाइन में बताइए कि मैं कैसे पास हो सकता हूँ। तो सदानंद वाज अ वेरी स्मार्ट किड, ये ऐसा मत बोलो मुझे मोटिवेट वगैरह, मुझे पास होना है, आप पास होने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक लाइन का फंडा दीजिए, एक लाइन का मंत्र दीजिए। तो मैंने बोला सदानंद, इफ यू वांट टू बी पास नेट एंड सेट, बी अ मास्टर ऑफ क्वेश्चन पेपर, बी अ मास्टर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का बाप हो जा, बी अ मास्टर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो उसने उतना ही ध्यान में रखा। तो फिर सदानंद ने कोल्हापुर में रूम ले लिया, 7 दिन इतना क्वेश्चन पेपर का पढ़ाई किया, इतना क्वेश्चन पेपर का पढ़ाई किया, 8वें दिन आ गया तो बोला सर अब मैं क्वेश्चन पेपर का मास्टर हो गया हूं, कुछ भी बोलो मैं आपको बोल सकता हूं क्या क्वेश्चंस थे, कैसे पूछे थे। और मैंने देख लिया सदानंद ने इतना जबरदस्त क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया 7 दिन के अंदर, अनबिलीवेबल। फिर नागपुर से मुझे कॉल आया, आप लेक्चर के लिए आइए, और अगर आप आते हो तो आपके साथ कोई रिसोर्स पर्सन रहेगा तो उनको भी लेके आइए। तो मैंने सदानंद बैठा था, तो बोला सदा चला आता है क्या तू नागपुर को? तो आता हूं बोला। तो फिर मैं सदानंद को लेके नागपुर गया, मेरे पास उसका वीडियो भी है पूरा, मैं कभी तो आपको दिखाऊंगा। और फिर वहां पे जाने के बाद मैंने सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, तो सब स्टूडेंट्स को मैंने बोला, ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, लुक इफ यू वांट टू पास नेट एंड सेट, you have to become a master of question paper, you have to become a master of question paper like सदानंद यादव is। सदानंद ऊपर आ जाओ। तो सदानंद स्टेज पे ऊपर आ गया। अभी देखो स्टोरी सदानंद की। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला, स्टूडेंट्स ही इज सदानंद यादव, इसके जैसा आपको मास्टर ऑफ क्वेश्चन पेपर होना है। और सदानंद को मैंने बोल दिया था कि जो स्टूडेंट्स पूछेंगे उस पे ही बात करना है, ज्यादा बात नहीं करना। तो मैंने बच्चों को पूछा, आप कोई भी उसको टॉपिक पूछो, या आपको क्वेश्चन पेपर बोलेगा, क्वेश्चंस कैसे थे वो बताएगा। और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मत पूछो। स्टूडेंट से शुरू किया। अभी देखिए आपको कमरान एंड ऑल दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई से, लेकिन क्वेश्चन पेपर का कैसे मास्टर होता है आपको बताता हूं। तो ऐसे सदानंद था, इमेजिन करो मैं सदानंद हूं, और एक बच्चे ने पूछा सदानंद फोटो केमिस्ट्री। अभी ये 2013 है, सदानंद कैसे शुरू करता था? Photochemistry 2001 Norris type 1, 2002 Norris type 2, 2003 Norris type 2, 2004 pattern reaction, 2005 it was a photodimeration, 2006 Norris type 2, 2007 pattern reaction, 2008 Norris type 2, 2009 dipymethane rearrangement, 2010 dipymethane rearrangement, 2011 photodimeration, 2012 Norris type 2, 2013 pattern reaction, 2014 आगे Norris type 2, 2015 pattern reaction, 2016 photoreduction of ketones। वो 10 साल पहले क्या था और 4 साल के बाद क्या आएगा ऐसे बोलता था। दूसरा टॉपिक सदानंद हेट्रोसाइकल्स ऐसे करता था। 2000 Bichler Napelski synthesis, 2001 Paul Knorr synthesis, 2002 Paul Knorr synthesis, 2003 it was a quinoline synthesis, 2014 again Paul Knorr synthesis, 2015 ऐसे 10 साल से आगे जाता था। अभी सदानंद को मैंने स्टूडेंट्स को पूछा था कि उसको इनऑर्गेनिक का मत पूछो, तो अगर बच्चों को बोलेगे कि आप कैडबरी के बारे में मत सोचो तो कैडबरी मन में आएगा। तो एक बच्चे ने पूछा सदानंद से, सदानंद यादव कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसने शुरू किया 1979 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 1980 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 1981 क्रिस्टल फील्ड स्टैबिलिटी एनर्जी, 1982 बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सदानंद का स्पेशलाइजेशन था। जब पहली नेट एग्जाम शुरू हुई थी 1979 से 2025 तक कैसे पैटर्न रहेगा सदानंद ने बोल दिया। सदानंद यादव 37 डेज कोल्हापुर में था। आई डोंट नो उसने पढ़ाई किया कि नहीं, लेकिन 2013 नेट एग्जाम में सदानंद यादव को 182 मार्क्स मिल गए, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। So you have to become a master of question paper.
पूरा उसी के अंदर है। समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का ट्रेन कैसे है। तो अब ये साइलेंट मोड पे, राइट, तो मोड चेंज करना पड़ेगा लाउड पे। ऐसे आपको पढ़ाई का मोड चेंज करना पड़ेगा। तो प्लीज पूरा क्वेश्चन पेपर का पढ़ाई करो, पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ाई करना है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कितने दिन है, फिर स्टडी मटेरियल आएगा। स्टडी मटेरियल, अच्छा स्टडी मटेरियल चूज कर लो। अच्छा स्टडी मटेरियल क्या होता है? रेफरेंस बुक्स, गुड रेफरेंस बुक्स। उपकार पब्लिकेशन का भी बुक अच्छा है, लेकिन 3 टीयर सिस्टम यूज करो। एक आधा उपकार पब्लिकेशन का बुक ले लो, उसके बाद एक आधे एकेडमिक के नोट्स ले लो और रेफरेंस बुक्स, और पॉइंट वाइज पढ़ाई करो, पॉइंट वाइज। अभी टाइम टेबल बनाओ, 30 दिन के अंदर इतने चैप्टर्स करने, तो हर दिन कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, और पढ़ाई कर लो। जब पढ़ाई करोगे 70% 30% ऐसा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। 70% आपको पढ़ाई करना है और 30% आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बराबर है। और जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्लियर रहेगा। वो सचिन तेंदुलकर एक 6 मारता है, उसके बाद ऐसे करके देखता है, क्यों? शॉट बराबर था क्या नहीं। ऐसे ही जब पढ़ाई करोगे, जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है, पढ़ाई चल रही है दूसरी, क्वेश्चन पेपर है तीसरे, क्वेश्चंस पूछे तीसरे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और दुनिया में कोई भी चीज करनी है तो इतना एनालिसिस उस चीज का कर लो, पूरा समझ में आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, कितना भी मटेरियल अवेलेबल है। मटेरियल क्या आजकल कमतरता नहीं है, मटेरियल ले लो और पढ़ाई करो। तो 70% टाइम आपका पढ़ाई में जाएगा। डेडिकेशन से पढ़ाई करो, ध्यान लगा के। लव योर बुक्स, मेक बुक्स योर फ्रेंड्स, एंजॉय योर स्टडीज। ऐसे नहीं होना चाहिए यार कब खत्म हो जाए एग्जाम, ऐसे नहीं। एंजॉय योर स्टडी, मेक बुक्स योर फ्रेंड्स, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। 70% आपने पढ़ाई किया, बाद में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 30% टाइम आपको कम से कम 3000 एमसीक्यू सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं। 3000। आप मुझे बताओ, अगर मुझे पायलट होना है, माय एम इज टू बिकम अ पायलट, तो मैं बुलक कार्ट पे प्रैक्टिस करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बुलेट लेके प्रैक्टिस करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैं ट्रैक्टर लेके प्रैक्टिस करूंगा तो मैं पायलट बनूंगा क्या? नहीं बनूंगा। मैं ट्रेन पे प्रैक्टिस करूंगा तो मैं पायलट बनूंगा क्या? नहीं बनूंगा। मुझे पायलट बनना है तो मुझे एरोप्लेन पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपको समझना है। अगर नेट सेट एग्जाम एमसीक्यू का है तो एमसीक्यू ही आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कम से कम 3000 एमसीक्यूज। नहीं तो 1-2 दिन मैंने ये पायलट का प्रैक्टिस कर दिया और तीसरे दिन मैं प्राइम मिनिस्टर को लेके जा रहा हूं किधर, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको कम से कम 3000 एमसीक्यूज की पढ़ाई करनी है। ओल्ड नेट सेट के क्वेश्चन पेपर्स ले लो और वो पढ़ाई करो। और जब पढ़ाई करते हो क्वेश्चंस, कैसा मेथड है? व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई, पुणे, दिल्ली, नागपुर, राइट। तो बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है? व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको आता है, आंसर है बी, दिल्ली। पीछे देखता है क्या बराबर है क्या? बराबर है। सेकंड, व्हिच इज द बिगेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान? चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना। इसको नहीं आ रहा है तो फिर क्या करता है? पीछे देखता है, क्या है? चिनाब। ऐसे नहीं है। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आज अगर इंडिया का कैपिटल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है दुनिया के कोई भी कंट्री का कैपिटल पूछा जा सकता है। कोई छोटी कंट्री का नहीं पूछेगा, लेकिन मोर इंपोर्टेंट सिटी कंट्रीज का पूछेगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में से आपको एक माइक्रो बिट मिलेगा, वो भी पढ़ाई कर लो। तो ऐसे अगर 3000 एमसीक्यूज पढ़ोगे तो 1000 बिट्स मिलेगी आपको। हर एक क्वेश्चन का पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाई करना है। गजानन राशनकर का जन्म कहाँ हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अर्थ पे 750 करोड़ लोग कहाँ पे रहते, उनका जन्म स्थान आपको याद करना है, ऐसे नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिट्स देंगे, राइट। व्हिच इज द बिगेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के साइड में जो कुछ कंट्रीज है उसके बिग रिवर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। ऐसे अगर 3000 एमसीक्यूज पढ़ोगे ना तो 1000 में आपको बिट्स मिलेंगे। इसे बोलते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। और ये 3000 एमसीक्यू सॉल्व करते करते वायरिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, राइट, रीजनिंग एबिलिटी, ये बढ़ेगा। और वो एक्सपीरियंस से आज मैं यहाँ पे ड्राइविंग कर सकता हूँ कोल्हापुर में 20 साल से। अगर कल मैं मान लो मालेगांव आ गया तो डेफिनेटली मैं वहां पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है ना मुझे। तो ऐसे होता है कि अगर आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको आपका पढ़ाई का प्रिपरेशन करना है। तो मैं थोड़ा आपको एक पीपीटी, 1 सेकंड के लिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं और देन आई विल एंड ऑल। Okay, so Zoya, can you see my screen? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. Yes, sir. okay, तो is it clear? ये शॉपिंग मॉल का पिक्चर क्लियर हो गया क्या सबको? Yes, sir. पॉइंट्स, सिलेक्ट पॉइंट्स, उसके बाद ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का, राइट।
कोई भी एक फाइल कर लो, फाइल कर लो, एक फाइल ऑफ योर लाइफ। कैसे होना चाहिए उसके फाइल में? पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हर एक पॉइंट पे कौन से क्वेश्चन है, उसके नीचे क्वेश्चन पेपर। ऐसे पेन ड्राइव नहीं दिखाना है एवरी टाइम। ओके, तो फिर ये करो। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद डायरेक्शन मिलेगा, गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। फिर 70% प्रिपरेशन करना है, 30% रिवीजन करना है, राइट। एंड कोई 3 बुक्स ले लो, एक उपकार पब्लिकेशन का, एक एकेडमी का नोट्स और रेफरेंस बुक्स, और समरी निकालो। पूरा पढ़ाई करते, पॉइंट बाय पॉइंट जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है रैंडम। एक पॉइंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, समरी निकालना है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, मैंने उसके बारे में तो आपको बोल ही दिया था। और ये सब ऑल दीज आर माय ब्लॉग्स ऑन माय फेसबुक। आप वहां पे फेसबुक पे जाके ये सब नेट सेट के लिए लिखा था। एवरी डॉग हैज हिज डे। I got so much appreciation from people. Then it's not over until I win. इसके बारे में मुझे people have liked that. Being Thangamagam, उसको इसके लिए मुझे नेशनल प्राइज मिला था। And why this Kolavreddy, the actor धनुष, ये मेरे घर आए थे ये ब्लॉग पढ़ने के बाद। उनके मूवी के बारे में, मूवी के नाम से मैंने ये लिखा था। So there are so many blogs you can visit. I do have my website also. मेरा वेबसाइट भी है, so you can use my website also and refer there. Okay, and these all are news which came in the newspaper. So many people have given a lot of respect to me, and questions अगर आपके है तो all that. And if you just put my name on website, you will get all the details of me. Okay, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, okay, you can consider me as your elder brother. और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज do speak to me. ओके, थोड़ा मुझे अभी आई डू हैव आई इन्फेक्शन, सो इरिटेशन होता है मुझे स्क्रीन पे वगैरह, अदरवाइज ऐसा नहीं रहता मैं ऐसे ये करके। ओके, एंड प्लीज आई डू हैव माय ओन चैनल आल्सो, तो आप उसको सब्सक्राइब करो। ओके, इट इज अ चैनल ऑफ अ टीचर। तो वहां पे बहुत सारे नेट सेट के हम प्रोग्राम्स लेते हैं। जो स्टूडेंट्स मराठी के हैं, जो मराठी जानते हैं, वहां के कुछ वीडियोस आप डेफिनेटली देख लीजिए। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो 4 to 5 minutes we can speak on the questions. Okay, क्वेश्चंस नहीं रहते, और अगर पूछना है तो एक करके मुझे पूछो। मैंने मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी शेयर किया है आपके साथ। ओके, हेलो सर। हाँ, यस सर, मैं नितिन शिंपू, आई थिंक मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ लास्ट ईयर। तो नेट सेट मेरे लिए क्या हो सकता है? इंजीनियरिंग का आपको देखना पड़ेगा। मैं आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आई विल गिव यू अ मैसेज बाय इवनिंग। ओके, थोड़ा देख। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। बट रिमेंबर, दिस इज ये नेट सेट के बारे में नहीं, मैंने ये आपको लेक्चर दिया। दिस इज अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट? यस, मैं गेट के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। Yes, बहुत यही होगा लागू आपको। दिस विल बी एप्लीकेबल टू यू। बहुत अच्छा फंडा मिला एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एनालिसिस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। यस 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 यस, आई स्टिल रिमेंबर भावना गर्ग, IAS फर्स्ट स्टूडेंट केमिस्ट्री लेके, शी टॉप्ड। ओके, सो उन्होंने भी ऐसी प्रिपरेशन किया था। हाँ, शी वाज आवर स्टूडेंट, शी टॉप्ड केमिस्ट्री में IAS, आई थिंक लॉन्ग बैक 2007-6 का रहेगा। एवरीवेयर दिस फंडा इज एप्लीकेबल। ओके, right, so I hope there are no questions. And Pathan sir, Sir, thank you for the wonderful workshop. Okay, thank you so much. Yeah, so I can relate one saying, so much. Can I just say it? Yeah, sure. So great teachers are the ones who make difficult things easy. And today I can look at you and say that, net set, there's so much of complexities around it. And the moment you hear net set, so many negative things come, ye exam pass nahi ho sakte and all that. But today you made it look like a cakewalk, literally, for us. Yes, Thank you for being with us today. Thank you so much, Joya. Thank you. Okay, so Pathan sir. Okay, so I hope anybody from JIT College, sir, can you hear me? Okay, I will share paper 1 notes, and Kamran, please take my mobile number and send me a message. I will send you books, okay, for paper 1. Okay, for everyone. I will share with the I will share the notes with Pathan sir also.
and subject-wise chemistry also I will send you the books. Okay, right? And I'm sure you will qualify. I will give you your subject specialized people also. Okay. Okay. So yes, Patan sir, it's a really wonderful thing for me. 1 month I was taking bed rest, and एक महीने के बाद I am really feeling so much energetic, right? Because you give me a chance to come in front of so wonderful students. And I'm sure that today's day, why it is so important, let me tell you why it's so important. Number one, today is establishment day of my university. Number one. Number two, today I have joined my department in the capacity of professor. So I received the order of professor in chemistry in my university. And today is the first day that I am joining. Third thing is, after 1 month of complete bed rest, I joined today. And I directly came in front of so wonderful students, right? And you know, students are my life. They are my oxygen. I can't live without them. And I was in depression for 6 months, right? And the most important is all girls are there. And I do have a daughter, and I believe that they are going to rule the world. So this has been the most wonderful day of my life being here. And I should really thank all the organizing committee of JET College for giving me such a wonderful opportunity. Okay. And all the girls there, please do consider me as your elder brother, and do send me a message for any of your queries, not only girls, but all other students also, right? Please, I will be very much fortunate to help all of you in terms of net and set. Okay. Because I believe that it's a duty given to me by God, and I should follow that very sincerely. Okay. So thank you so much, all of you. Over to you, Patan sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. 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 Is I audible to you? Is I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Sir, thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. It is a privilege to have you. Hello, sir. It's a privilege to have you in our work. It is a fantastic lecture, sir. Yes, sound problem is. All the important things regarding NetSet exam preparation. This is the basic information that you have given to all of us. Thanks a lot for this, sir. Hello. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I'm leaving the meeting now because we have a program in the university. Hello. Okay. Thank you so much, sir, for giving me the wonderful opportunity. Hello. Yes, sir. Hello. 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 Yes, sir. Ashinkar, sir. Yes, sir. Sir, I can hear you. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, your lecture is one of the fantastic lectures. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm also a student of yours, sir. I have learned your notes during my NetSet exam preparation. Thank you, sir. And today it is a dream comes true, sir. Thank you so much, sir. To see you in front of me and to get the knowledge regarding NetSet examinations.
it's a fantastic experience. And Thanks a lot, sir. It's a great thing you have done, sir. It's a very great The mentors organized and like you systematically organized. can definitely change the thinking, our thinking of the students, sir. Thanks a lot. Thank you. Hello, sir. Sir, I am leaving now. Hello, Thank you, sir. Program, sir. हेलो सर 2019 का पेपर हल कराओ ना पहला पेपर Hello. हाँ हेलो सर Sanket, sir. Patan, sir. Hello. हेलो Yes, sir. Sir, हाँ मैं ये सर Thanks a पहला lot, पेपर sir. हल कराओ ना Thanks a lot, 2019 का हेलो हेलो बोल रहे हैं ना हेलो सर Hello. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. sir, नहीं करें Patan, sir. हाँ बोलिए सर. Sir, I will send Police. you the notes of paper 1 on WhatsApp, Okay, sir. and you can share with the students, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, I am going Definitely. to use the program. I will leave the meeting now, sir. Okay.